Assalamu alaikum everyone. Good morning and welcome to the Inside Scoop. A very exciting and important turn of events happened stock market में हमारी especially last week and Monday को we saw the market lose about a total of maybe 7%. On Monday especially the market dropped 3.49%. And बहुत सारी हमने panic selling देखी. We saw that mutual funds were net sellers. Mutual funds सिर्फ तब selling करते हैं when there are redemptions. Redemptions तब आती हैं जब clients अपने पैसे निकालते हैं. And honestly, let's talk a little bit about that. There was a lot of civil unrest in the country. We're not going to get into it because this is not a political show. This is an economics and finance show. तो there was civil unrest जिसकी वजह से बहुत सारी news circulate कर रही थी on social media. जब भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नज़र आती है मुल्क में तो सबसे पहली आपकी स्टॉक मार्केट टेक्स द हिट बिकॉज वेरी ससेप्टेबल एक्विटीज़ आर वेरी ससेप्टेबल टू रिटेल पैनिक. तो उसकी वजह से देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूज़ सर्कुलेटिंग. Markets didn't start off as negative as it closed. It ended up closing around 4,700 points negative. अब behind the scenes जितना स्मार्ट मनी बैठा हुआ था, जितना अक्लमंद इन्वेस्टर बैठा हुआ था, उसको एक चीज़ पता थी कि ये कंपनीज इनकी अर्निंग्स पे कोई फ़र्क नहीं आया है. दैट गुड कंपनीज, गुड मैनेजमेंट, एक्चुअली फंडामेंटल लेवल पे मुल्क पे नथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग. ऑन अ मैक्रो लेवल एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड. हमारा रिलेशनशिप विद द यूएस, विद चाइना, विद द करंट मीटिंग ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, with President Donald Trump, and ऊपर से crude oil prices falling below $60 per barrel. ये सारी चीज़ें macro economically बहुत positive है पाकिस्तान के लिए. So there was nothing fundamentally wrong with the market. It was just panic selling. So anyone जिसने अपने levels देखे हुए थे और देख रहा था कि बहुत सस्ती मिल रही थी, certain stocks especially some great blue chip companies were selling at such a discount. So people took their positions on Monday. And of course, toward the evening of Monday night, the political unrest had been solved, the protests were called off, and yesterday we saw the market jump 7,000 points in one day. अब जिन लोगों ने redemptions Monday को डाली हुई थी या Friday को डाली थी, and they kind of took their position in the market by Monday by exiting, उन लोगों को एक तो they lost 3.4% on Monday. And then what also happened was they missed कल का 4.5% की positive closing. So this is why on this show especially हम कोशिश करते हैं कि हम आप लोगों को encourage करें कि panic selling नहीं की जाए, long term holding की तरफ आएँ, learn to evaluate companies on proper economic parameters and financial parameters जिन पर उनको देखी जाती हैं. Look at management, price to earning, price to book, growth, expansions. Learn to look at their financial statements. उस पर अपनी decisions बनाए. Don't make decisions based on के market लाल है या हरी है and के panic हो रहा है. I actually spoke to a lot of brokers on Monday and they were like, oh, mandi aa gayi hai, mandi aa gayi hai. This is not what a mandi looks like. Mandi does not look like macroeconomic improvement, right? Mandi comes when there are fears of recession. That is when people essentially really take out money from the market, and that's when the market falls. Also, a correction is, by book definition, a loss of 10% of market cap or more. That was absolutely not the case. 13% हमने lose किया था Monday को, and then recovered even more than that on Tuesday. So, throughout the day yesterday, the market stayed positive, touching an intraday high of 165,900 points. ये एक technical bounce नहीं था, एक sentiment shift था. The political noise went down. जब हालात stable होते हैं तो investors feel safe to come back in. Trading volumes बहुत impressive थी. Over 586 million shares traded on KSE 100, with 96 out of 100 companies closing positive. Major winners were Systems, NRL, PEL up 9%, BOP up 8%, Lotte Chemical up 8%. Sector-wise, banks, cement, oil and gas, exploration and technology stocks were leading the way. To give perspective, KSE 100 ने almost 40,000 points add किए हैं to itself this fiscal year, and 50,000 points ज़्यादा in the calendar year, which is more than a 44% jump. मतलब कि लोग panic में sell कर गए थे, उन्हें सिर्फ loss book किया, जबकि market ने उसके बाद बहुत solid recovery दिखाई है. This is exactly why every seasoned investor says don't panic sell when the market dips. So जो smart लोग थे, again when fear is high, that's when they go into buying, और वही लोग reward लेते हैं जब market वापस उठना शुरू होती है.
Part of this optimism is linked with, as I mentioned before, the macroeconomic confidence. Pakistan is about to finalize a preliminary agreement with the IMF इस हफ्ते में जो अनॉक करेगा अगला $1.24 billion की tranche under the $7 billion IMF Extended Fund Facility. Our finance minister confirmed that उनके साथ जो बातें हुई हैं, they were constructive and staff level agreement could be signed any day. Once that happens, ये एक again macroeconomic stability देती है, हमारे accounts बेहतर होंगे इसी वजह से, and markets हमेशा stability को बहुत तेज़ी से price in करती है. हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी रिवील किया कि कुछ बड़े प्लान्स हैं. पाकिस्तान इज प्रिपेयरिंग टू इशू इट्स फर्स्ट एवर ग्रीन पैंडा बॉन्ड इन चाइनीज़ युआन बिफोर ईयर एंड वो एम करता है टू रिटर्न टू ग्लोबल मार्केट्स अगले साल विद अ $1 billion यूरो बॉन्ड और सकूक इशुएंस. ये एक बहुत क्लियर मैसेज है कि पाकिस्तान ना सिर्फ रिकवर कर रहा है, वो अपने आप को पोजिशन कर रहा है कॉन्फिडेंटली इन ग्लोबल फाइनेंस अगेन. एट द सेम टाइम, long delayed privatization push is finally moving. Sales of 3 power distribution companies and PIA are picking up pace. Major players being Airblue, Lucky Cement, RF Habib, Forgy Fertilizer, जो सब PIA में interest दिखा रहे हैं, especially now that its lucrative routes to Europe and UK have reopened. अगर ये successful रहा तो पाकिस्तान की पहली major privatization होगी in almost 20 years. तो overall political tensions ease हो रही हैं, IMF progress हो रहा है, privatization momentum है, investor confidence वापस आ रहा है. जो लोग सिर्फ फेयर देख रहे थे उनके लिए एक रिमाइंडर है कि markets reward patience not panic. जब सब डर रहे होते हैं, that's exactly when you're trying to take positions and the market will of course reward you for that. तो कल की rally was a perfect reflection of that, from fear to faith, red to green. Again, the bulls always come back stronger. Global headlines turned fiery. China ने vow किया to fight till the end after President Donald Trump slapped a 100% tariff, a move that reignited a trade war between these two superpowers. Trump की move came after Beijing imposed new export controls on rare earth minerals. And then eventually that came out as a misunderstanding, but we have yet to gain clarity on that entire situation. Uski wajah se we saw gold surge past $4,100 an ounce, all-time high again. Pakistan में 24 carat gold ने 435,100 rupees per tola अपना भी एक record तोड़ा, which was up almost 7,000 rupees एक दिन में. Silver again, बहुत सारे एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि सिल्वर इज़ द नेक्स्ट मेटल टू लुक एट. मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इट्स एन इंडस्ट्रियल मेटल, उसकी 83% इंडस्ट्रियल यूसेज है. 2016 में 56% थी, तो वो एक एक्सपोनेंशियल रेंज पर जा रहा है. एंड सिल्वर इज़ इन लिमिटेड क्वांटिटी इन द वर्ल्ड, और वो क्योंकि उसकी नेचर एक इंडस्ट्रियल मेटल की है तो उसकी सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, विच विल कॉज द बेसिक movers of the market, the forces of demand and supply, to increase the price of it, right? Meanwhile, global markets इंतज़ार कर रही हैं for comments from Jerome Powell, who is the Fed chair, क्योंकि further rate cuts expect कर रही है market. 97% probability है currently according to certain analysts. Back home, Pakistan का banking sector बहुत bright shine कर रहा है according to AKD Securities. The sector is set for strong double-digit returns 2026 में. And all major banks from not buy or sell call, HBL, MCB, UBL, Bank Al-Falah, Allied Bank are rated buy with expectations ranging between 35% and 96% का return. तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, NPL स्टेबल हैं, डिजिटलाइजेशन, इस्लामिक बैंकिंग एक्सपेंशन से प्रॉफिटेबिलिटी का स्कोप बढ़ रहा है. सो एवरीथिंग इज लुकिंग गुड ऑन द बैंकिंग सेक्टर साइड. इन्फ्लेशन मॉडरेशन और सिंगल डिजिट पॉलिसी रेट से क्रेडिट डिमांड भी रिबाउंड करेगी. ऑन द मैक्रो फ्रंट, फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब इज बिजी इन वाशिंगटन एंगेजिंग ग्लोबल पार्टनर्स ड्यूरिंग द IMF एंड वर्ल्ड बैंक मीटिंग्स. पाकिस्तान ने एक और टैरिफ डील फाइनलाइज किए विद द US एम्ड एट बूस्टिंग बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मेट विद द US ट्रेजरी ऑफिशियल्स, IMF एंड IFC लीडरशिप एंड Dr. Mohammed Salman Al Jasir, emphasizing कि पाकिस्तान का बहुत strong reform momentum है, digital transformation है, it's emerging as a regional investment hub. IFC ने confirm किया कि उनका regional office इस्लामाबाद में open होगा, which is again another small symbol of investor confidence. Aurangzeb also discussed fast-tracking the RECODIG project and thanked ISTB for
financing the M6 motorway and other key development initiatives. In short, जब global stage heat up कर रहा है with US-China tariff war, Pakistan की economic diplomacy is quietly gaining traction. A clear signal है कि global uncertainty के बावजूद Pakistan is moving from stabilization towards sustainable growth on one strategic step at a time. I'm going to let you guys take a short breather. After the breather, we're going to have Mr. Yaqub Sultan, who is the COO at AKT Funds. तो कहीं नहीं जाएगा. You're watching The Inside Scoop. I'm Marshall Khan. Welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. Break में जाने से पहले I let you know that we have a very special guest with us today. We have the COO of AKT Funds with us, Mr. Yaqub Sultan. Thank you so much for being with us today, sir. Thank you so much for inviting. So, sir, सबसे पहले let's talk about what everyone is talking about on the internet, which is कि Monday को market 4,700 points almost down थी and कल 7,000 points plus की closing. So, as someone who is the CEO of a mutual fund, तो please बताएं कि what were you guys feeling versus what the clients were feeling on Monday? Thank you. Before हम अपना एक रेगुलर डिस्कशन स्टार्ट करें, मैं एक वाक़या बयान करना चाहूँगा. In 2018 I was in ऑस्ट्रिया, यूरोप, और वहाँ पर एक पीस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और काफ़ी कंट्रीज से लोग आए हुए थे और हमारा डिस्कशन चल रहा था अबाउट द ग्लोबल थिंग गोइंग अराउंड. तो उसमें एक हमारे साथ फ़लस्तीनी भाई थे और ही सेड कि एटलीस्ट यू हैव योर कंट्री टू गो बैक टू. वो मेरे इतना हिट किया और ये आज हम जो है वो विटनेस भी कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी है जिसकी वजह से हम जो है रात को सुकून से सो सकते हैं. और इसी वजह से जो आज हमारा ग्लोबल एक रिकग्निशन मिल रही है और हर जगह हमारी जो है वो इन्विटेशंस आ रहे हैं जिसमें हमारे पीएम भी जा रहे हैं, फील्ड मार्शल भी जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जा रहा है. और यही कॉन्फिडेंस की वजह से जो है आज हमारी स्टॉक मार्केट जो है रोज़ के रोज़ नए हाइज़ बना रही है. शॉर्ट टर्म में हाँ ठीक है, हिकअप्स आते हैं, करेक्शंस आती हैं और हमने मंडे को भी विटनेस किया. और डेफिनेटली जब करेक्शंस आती हैं तो लोग थोड़ा पैनिक भी करते हैं और बहुत ही हाई टाइम होता है बाइंग का. बट एज ए म्यूचुअल फंड उस वक्त हम बाइंग से ज़्यादा हमारी एफ़र्ट्स जो लग रही होती हैं वो ये लग रही होती है कि हम अपने इन्वेस्टर्स को कन्विंस कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं कि अभी सेलिंग ना करेंगे, सेलिंग टाइम नहीं है, ये बाइंग टाइम है. और काफ़ी मरतबा ऐसा होता है कि जब हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो आते हैं मार्केट में, काम करते हैं और थोड़ी सी मार्केट करेक्शन होती है तो वो सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं और वो भी बिल्कुल डिप्स पे. जिस तरीके से मार्केट मंडे को करेक्शन हुई तो इन्वेस्टर्स ने जो है बुकआउट किया और फिर ट्यूसडे को वापस बढ़ गई तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं हो कि अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, तो उन्होंने फिर वापस पार्टिसिपेट किया. तो वो एक तकरीबन 5-6-7% का उनका गैप बन गया. तो इट इज़ बेटर कि जब भी मार्केट जो है वो डिक्लाइन की तरफ हो तो हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, मार्केट में एडवांटेज उठाना चाहिए उस चीज़ का, ताकि हम जो है आगे जाके बेनिफिट्स रीप कर सकें. वो कहते हैं ना कि यू इन्वेस्ट व्हेन देयर इज़ ब्लड ऑन स्ट्रीट्स. तो उस टाइम पे जहाँ पे करेक्शन हो फॉर वट एवर रीज़न इट इज़, हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए. अगर हम इकनॉमिक साइड पर देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो डे बाई डे इम्प्रूव हो रही है. एक्सटर्नल फ्रंट पे अगर हम देखें जिस तरीके से हमारा IMF का जो है वो अग्रीमेंट साइन हो गया, अभी उनके बोर्ड लेवल पे जाएगा और होपफुली विद इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज टू अ वीक हमारा जो है वो $1.24 बिलियन का डिसबर्समेंट भी हो जाएगा IMF की तरफ से. तो हमने यही देखा है कि हमारे पास फॉरेन इन्फ्लोज आ रहे हैं जिसकी वजह से हमारी करेंसी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही स्टेबल रही है. इनफैक्ट अप्रिशिएट हुई अगेंस्ट दी US डॉलर थोड़ा थोड़ा. तो हमें करेंसी की साइड पे जो है वो इतना कोई इशू नहीं रहा है. इंटरेस्ट रेट्स हमारे स्टेबल रहे. लास्ट 2 मॉनेटरी पॉलिसीज़ से कॉशियस अप्रोच था हमारा स्टेट बैंक का कि क्योंकि फ्लड्स का एक थ्रेट था और था कि ऐसा ना हो कि फ्लड्स की वजह से जो है वो फूड डैमेज हो जाए, हमारी क्रॉप्स डैमेज हो जाए, फूड इन्फ्लेशन हमारे पास आ जाए. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि फ्लड्स जो आए हुए थे, फ्लड सीवियर थे काफ़ी, लेकिन अर्बन फ्लडिंग काफ़ी ज़्यादा थी इस बार जो है, और इतना ज़्यादा क्रॉप को डैमेज नहीं हुआ. तो जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट भी गोइंग फॉरवर्ड इतना नहीं लगता है. तो मे बी इन दी कमिंग डेज़ हम ये विटनेस करें कि स्टेट बैंक ने जो डिक्लाइन स्टार्ट किया था डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स का फ्रॉम 22%, तो हम मे बी हम विटनेस करें कि हम सिंगल डिजिट में इन रीसेंट टाइम्स में चले जाएं बेस्ड ऑन द आउटलुक कि अब इन्फ्लेशन नंबर्स जो हैं वो
थोड़ा बहुत इनकी जो स्टेट बैंक की एक्सपेक्टेशन है 7%, 5 to 7% की रेंज से मे भी थोड़ा सा ऊपर जाएगी, बट स्टिल हम पॉजिटिव रेट्स पे होंगे। तो वो भी हमें स्टेबिलिटी लगती है, इन्फ्लेशन के एंड से भी इंटरेस्ट रेट्स नीचे लगते हैं। प्लस पाकिस्तान की अगर हम बात करें, इकोनॉमी की हम बात करें, तो देयर बीन 3 मेजर फैक्टर्स जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। एक तो हमारा सर्कुलर डेट हमें जो है हॉन्ट करता रहा है काफ़ी सालों से। हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है कि गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं सर्कुलर डेट को एड्रेस करने के लिए, और कुछ ट्रांच रिलीज़ भी होने वाली है। इन रिसेंट टाइम्स में एग्रीमेंट्स भी साइन हो गए। तो बोथ ऑन दी पावर सेक्टर और गैस सेक्टर दोनों साइड पे जो है इस वक्त गवर्नमेंट के एफर्ट्स चल रही हैं, और उसमें हम पॉजिटिविटी देख रहे हैं। सेकंड जो हमें एक हमेशा से जो हमें इश्यूज़ रहे हैं वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ के एंड से रहा है कि वहाँ पर हमने काफ़ी जो है वो लॉसेस उठाएं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ पे। तो उस एंड से भी हम देख रहे हैं कि हम जो है वो प्राइवेटाइजेशन की जो मिनिस्ट्री है और जो भी लोग हैं वो काफ़ी एग्रेसिवली कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं जो ब्लीड कर रही हैं उनको हम जो है प्राइवेटाइज़ करें। और ये कंट्री के लिए भी अच्छा होता है। इसमें जो है आपको एक तो ये लॉस मेकिंग एंटिटीज़ जो हैं लॉस करना बंद कर देती हैं, प्रॉफिटेबल हो जाती हैं। गवर्नमेंट को इसमें ठीक ठाक टैक्स जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। आप अगर बैंकिंग सेक्टर में देखें, एचबीएल, यूबीएल जो प्राइवेटाइज हुए, पीटीसी और दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हमने देखा कि इलेक्ट्रिक वगैरह, तो सब अब जो है वो प्रॉफिट्स मेक करते हैं और सब गवर्नमेंट को ठीक ठाक टैक्स पे करते हैं। प्लस कस्टमर के एंड से भी कि कस्टमर सेंट्रिक होती है इनकी सारी पॉलिसीज़। तो पहले जो है वो कस्टमर्स भी बहुत सफ़र करते थे, अब जो है वो कस्टमर्स भी इंजॉय करते हैं इन सारी सर्विसेज को। तो ये है। तीसरा जो एक चीज़ जो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा टिकिंग बॉम्ब बना हुआ था वो पेंशन्स था। पेंशन्स जो हैं वो काफ़ी उनकी पेमेंट्स हैवी होती जा रही थी। तो उस पर हमने देखा कि प्रोविंसेस में केपीके ने इनिशिएटिव लिया, फिर बाकी प्रोविंसेस ने भी लिया, अब फेडरल भी अपना पेंशन का पूरा रिवैम्प कर रही है। तो इकनॉमी साइड से अगर हम देखें, डोमेस्टिकली भी हमने काफ़ी चीज़ों पे एज अ नेशन हमने काम किया है, और ग्लोबली भी हमारा चल रहा है, इंटरनेशनली फंडिंग भी आ रही है हमारे पास। एफडीआईज़ भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हम रिसेंट रेकोडेक के हवाले से, और हमने जो रेयर अर्थ मेटल्स के हवाले से जो हमारे एग्रीमेंट्स चल रहे हैं, जो नेगोशिएशंस चल रही हैं। तो इस वक्त जो है इकॉनमी बहुत ही जिसे कहते हैं कि हिस्टोरिक चल रही है, जिसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं कि बहुत बेहतरी है। इससे बेहतर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे, और एवरी स्टेप हैज़ बीन इन द राइट डायरेक्शन। डेफिनेटली। तो वन फेयर जो मुझे स्पेशली इन्वेस्टर्स से बहुत सुनने को मिलता है, हमारी अवाम हैज़ अ हैबिट ऑफ लुकिंग वेयर एवर देयर इज़ एन ऑल टाइम हाई, राइट? तो अभी गोल्ड ने जब भी ऑल टाइम हाई किया है, एवरीवन सर्टनली वांट्स टू बाय गोल्ड व्हेन इट्स रियली एक्सपेंसिव। सिल्वर ने ऑल टाइम हाई किया ना, सर्टनली ऑल द ज्वेलर्स इज सेइंग कि एवरीवन वांट्स टू बाय सिल्वर ब्रिक्स। तो एट द सेम टाइम अ लॉट ऑफ पीपल आर the way that global markets work and global economies work are a little different to Pakistan, because we have different cycles and sometimes they are not in line with बाकी दुनिया, right? Because हमारी mostly crude oil की prices के साथ साथ चलती हैं चीज़ें. So and a lot of people are fearing कि चलें gold internationally all time highs पे क्योंकि reach कर रहा है, that is a sign of recession, right? उसका RSI भी is at a majorly overbought level of 93. So, can you please explain why Pakistan is, even if the rest of the world is at the threat of recession, Pakistan is not there right now? हम अभी तो निकले हैं उस चीज़ में से। Exactly. तो पाकिस्तान में तो अभी भी बहुत पोटेंशियल है टू ग्रो। जिस तरीके से ग्लोबली सारे इन्वेस्टर्स दे आर कमिंग टू पाकिस्तान, हमारे पास हर चीज़ के इस वक्त जो है वो रिजर्व्स हैं, जिस तरीके से पार्टिसिपेशन हो रही है हमारी इकोनॉमी, हमारे पास यूथ है जिसका हम एडवांटेज उठा सकते हैं। तो कंपेयर टू अदर नेशंस, अदर कंट्रीज़, हमारे जो नंबर्स, हमारे जो फंडामेंटल्स, हमारे डायनामिक्स, दे वेरी डिफरेंट। हमारी आर्मी दी बेस्ट आर्मी है इस वक्त, एवरीवन इज़ लुकिंग टुवर्ड्स आवर आर्मी कि हम जाके उनको सपोर्ट करें। तो कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, उधर जो है पोटेंशियल टू मेक मनी इज़ फार लेस देन कंपेयर टू पाकिस्तान। हमारे पास तो इस वक्त जो है वो हर चीज़ की जो है अबंडेंस है। हमारे पास चारों वेदर्स हैं, तो आपके एग्रीकल्चर के हवाले से भी हमारे पास जो है पोटेंशियल है, रेयर अर्थ मेटल्स के हवाले से, पॉपुलेशन के हवाले से हमारे पास वर्क फोर्स है। एक जो चीज़ हमें जो हमेशा कंसर्निंग रहती है वो हमारे जो है कॉस्ट है, जो स्पेशली जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, कि जो भी कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो वो पहले यही सोचता है कि यार जो है इलेक्ट्रिसिटी पावर के टैरिफ्स बहुत हायर साइड पर हैं।
तो उस पर भी गवर्नमेंट जो है वो अग्रेसिवली काम कर रही है, जो आपका पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के हवाले से। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड काफ़ी रैपिड होगी पाकिस्तान में, होपफुली। गवर्नमेंट का फोकस है, सबसे अच्छी बात यह है, स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन है, तो फुली चीज़ें गोइंग फॉरवर्ड बेहतर ही लगती हैं। एक्सपेंशन भी हम हमारे जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं उनमें फोर्सी कर रहे हैं कि वो मज़ीद एक्सपेंशन करेंगी। लिक्विडिटी अवेलेबल है, अगर किसी को लोन्स और ग्रांट्स वगैरह जो भी चाहिए होती है तो वो अवेलेबल होती हैं, तो दैट इज़ नॉट ए कंसर्न फॉर एनीवन। तो चीज़ें बेहतर लगती हैं पाकिस्तान में इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड, और मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स होंगी। Definitely. So one problem that we face a lot in Pakistan is and I'm sure even you guys probably get this question so often, कि इतना टाइम क्यों लग रहा है KYC में, आप लोगों को इतनी डिटेल क्यों चाहिए, all of these things. So the same question that all of us who work at brokerages, mutual funds and any financial institution, right, is कि जब एक शख्स ने already, if he has a bank account, that means they've gone through a certain KYC, right? वो चीज़ centralized क्यों नहीं है on a CNIC? Our CNICs have a little chip in them. What is that chip for? It is, if it is not used for centralized data, right? हमारी इंडस्ट्री को एक्सपैंड करने के लिए अगर हम अभी पार्टिसिपेशन देखें कि we have 400,000 UINs, right? Around 0.018% of our population is invested in the market right now, which means that even if this number comes to 5%, it would be a huge jump for our market when it comes to participation, right? So what can be done on that end? क्या कुछ काम actually हो रहा है? Because we constantly see in the news, oh, government's working on KYC, these people are working on KYC, SEC ने suggestions दिए. I don't think any real work is being done, and it's something that's being overlooked because जितना आपका investor एक तो पहले ही डरा हुआ होता है investing in Pakistan's economy, ऊपर से जब आप उसको इतनी लंबी चीज़ों में मुब्तला कर देते हैं, तो what ends up happening is they're like, maybe this is a sign कि मुझे investment नहीं करनी चाहिए थी, right? So is there anything happening उस front पे? देखिए KYC तो अपनी जगह ऑब्वियसली वो रिक्वायरमेंट्स हैं, स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, बट मुझे फील होता है कि जो इन्वेस्टर्स जो शाय अवे करते हैं वो अवेयरनेस है मोर के रादर देन कि हम इसको ये कहेंगे KYC की रिक्वायरमेंट्स हैं। डेफिनेटली वो भी हैं, क्योंकि यही जो इन्वेस्टर्स हैं ये दूसरे क्रिप्टोज़ वगैरह में भी और काम करते हैं, लेकिन वहाँ तो एक सेकंड में अकाउंट, वहाँ पे अकाउंट्स खुल जाते हैं, KYC की रिक्वायरमेंट्स कम हैं। बट अगर हम देखें तो वहाँ पे आप जो है स्क्रॉल कर रहे होते हैं, कोई भी सोशल मीडिया ऐप आप उसको स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हर तीसरा ऐड जो है कोई ना कोई जो है वो क्रिप्टो वेबसाइट का होता है, तो वो उनको इंटाइस कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर शायद आप ईजी या डिफ़िकल्ट भी कर दो, और इवेंचुअली उधर भी जो है वो यही KYC रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी, आज अगर नहीं है तो वो मेरा अपना व्यू ये है कि हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे हमें ज़्यादा फोकस करना होगा। सेंट्रलाइज्ड KYC पे डेफिनेटली काम चल रहा है, जो भी हमारे जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं इन कोऑर्डिनेशन विद दी CDC एंड नेशनल क्लियरिंग, और हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हो गया, इसके अलावा बैंक्स हो गए, ब्रोकरेज हाउसेज हो गए, सब इन कोऑर्डिनेशन काम करें। ऑब्वियसली थिंग्स टेक टाइम, सबके अपने माइंडसेट होते हैं, सबके अपने रेगुलेटर्स हैं, कहीं स्टेट बैंक इन्वॉल्व होता है, कहीं SECP इन्वॉल्व होता है। बट मेरा अपना व्यू ये है कि थोड़ा मार्केटिंग की साइड पे भी एज एन इंडस्ट्री हमें काम करना काफ़ी ज़रूरी है, कि ताकि जो है लोगों को और अवेयरनेस हो, लोगों को रिटर्न्स का अंदाज़ा हो, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स आएंगी अगर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो मार्केट में वॉलेटिलिटी भी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी भी ज़्यादा आ जाएगी। डेफिनेटली इफ यू हैव मोर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, एग्जैक्टली, बिकॉज वरना like the reason I keep telling people that it's so easy to invest in the stock exchange is because हमारी market is not an efficient market, right? So the efficient market hypothesis does not even apply. When that is not the case, आप बहुत simple levels को देखिए, you literally just look at के sector wise price to earnings out of obviously the good companies, what is cheapest, price to book, what is cheapest, क्या कौन सा स्टॉक अपने हिस्टोरिकल लेवल, अपने हिस्टोरिकल प्राइस मल्टीपल से नीचे ट्रेड कर रहा है ड्यूरिंग अ डिप, सबसे ज़्यादा हिट किसको आया, दिस इज ऑल द थिंग्स वी वर ऑल लुकिंग एट, राइट? कि सबसे ज़्यादा मार किसको पड़ी है, सबसे ज़्यादा जगह फ्रॉम इट्स ओन हाईएस्ट लेवल, कौन सा स्टॉक अपने हाईएस्ट लेवल से दूर बैठा हुआ है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। एंड द मोर यू आर कम्प्लीटली राइट कि द मोर दोज काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स कम इन हु हैव अ होल्डिंग पावर जो आती है कन्विक्शन से, तो उतनी हमारी मार्केट
स्टेबल रहेगी. So right now with the next IMF tranche that we're expecting कि staff level agreement reach हो जाएगी, then we'll get another $1.24 billion. Do you expect कि जिस तरह last time हुआ था कि last time we got the disbursement, the market again started gaining like a few percent. Do you expect the same reaction from the market this time? देखिए, जो आपने बात की कि हम जो है नंबर्स को देखकर पार्टिसिपेट करें, रिटेल पार्टिसिपेशन हो, चाहे वो प्राइस टू अर्निंग्स हो, प्राइस टू बुक हो. एज ए लेमैन तो डेफिनेटली आप जो है 2-4 नंबर्स को आप आइडेंटिफाई कर लोगे और पार्टिसिपेट कर लोगे. बट सिर्फ जो है वो एज एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हम जो है काफ़ी चीज़ों पे जो है वो करो, तो उसकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ क्या है, कंपटीशन क्या देख रही है. तो हमारा एडवाइस यही होता है कि जब रिटेल आए, पार्टिसिपेट करे और उसकी कोर एक्सपर्टीज़ नहीं है इस चीज़ की, और उसकी एक्सपर्टीज़ वो है जो वो ऑलरेडी कर रहा है, अगर वो बिज़नेस कर रहा है या वो कोई जॉब कर रहा है, तो वो उसमें ज़्यादा फोकस करे. और ये जो असाइनमेंट है, ये टास्क है, ये जो है वो किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को दे दे, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट भी एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है. जिस तरह आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, या आपको कोई लीगल इशू होता है तो आप लॉयर के पास जाते हैं. तो इसी तरीके से इन्वेस्टिंग भी जो है स्पेशलाइज्ड फंक्शन है. तो आपको चाहिए कि आप एक जो है म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाएं और उसके थ्रू पार्टिसिपेट करें. जब रिटेल पार्टिसिपेशन करते हो, जो हमने बहुत ज़्यादा विटनेस किया है कि जब मार्केट में आप काम कर रहे होते हैं, एक तो ब्रोकर के कहने पे काम कर रहे होते हैं, मार्केट रूमर्स पे ज़्यादा लोग प्ले कर रहे होते हैं. जो इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें जो ख़राब होती हैं उसका रीज़न होता है लेवरेज. कि लोग एक्साइटमेंट में जो है ना लेवरेज करना स्टार्ट कर देते हैं. अगर 1-2 ट्रेड्स में जो है वो आपके पैसे बन जाते हैं तो आपको फील होता है कि यार मुझे तो सब समझ आ गया, और जो मैं जो है वो अपना एक उस ऑरा, उस यूफोरिया में आप चले जाते हो कि जहाँ आप कहते हो कि यार मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे मेरे से अच्छा इन्वेस्टर नहीं है. तो आप वहाँ पे लेवरेज पोजीशंस ले लेते हो. और लेवरेज पोजीशंस लेने के बाद तो फिर आपको पता है थोड़ा बहुत भी मार्केट आगे पीछे हो तो जनरली हमने देखा लोगों के कैपिटल वाइप आउट हो जाते हैं. तो म्यूचुअल फंड का ये एडवांटेज होता है कि वो आप लेवरेज नहीं होते हैं. तो इस वजह से हमारे पास अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और अगर थिंग्स टर्न सावर तो कैपिटल आपका फिर भी होता है. ऐसा नहीं है कि आपका जो है वो 100% लिक्विडेटेड. एग्जैक्टली. तो वहाँ पर आपका जो है वो एक्विटी फिर भी अवेलेबल होती है. प्लस जब आप म्यूचुअल फंड में काम कर रहे होते हैं, अब आपका एज एन इंडिविजुअल जो है वो कैपिटल लिमिटेड होता है. अब आपके पास लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख आपने पार्टिसिपेट किया, 3-4 स्टॉक्स ले लिए, अब वो परफॉर्म नहीं करते हैं. तो एक तो आपके पास डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाती है जो म्यूचुअल फंड्स के पास होती है. दूसरा, जब मार्केट्स घटती हैं तो उस पे भी, और आप भी क्योंकि इंडस्ट्री से, तो आपने देखा होगा जनरली हमारे पास इंडेक्स लेवल्स पे भी कमिटमेंट होती है कि यार अच्छा चलो अगर मार्केट जो है वो 1,50,000 के इंडेक्स पे है तो आप हमसा के फंड्स ले जाना. और इस तरीके से डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स काम कर रहे होते हैं. तो उस वक्त क्या होता है कि अगर हमने कोई पोजीशन ली और हम वो जो है वो नेगेटिव हो भी जाती है तो फिर हमारे पास नीचे लिक्विडिटी होती है कि हम उसमें मज़ीद पार्टिसिपेशन कर लें, क्योंकि हमारी तो कन्विक्शन होती है हमने एक चीज़ ली है एंड वी नो कि ये परफॉर्म करेगी, फंडामेंटल्स उसके इंटैक्ट हैं. तो अनलेस कोई फंडामेंटल चेंज आ जाए, वरना तो आप जो है फिर उसको नीचे एवरेज करते हो. तो जो चीज़ आपने अगर फॉर एग्जांपल 100 पे ली और हमने भी 100 पे ली है, बट हमारे पास नीचे वो उसको मज़ीद लेने की कैपेसिटी बन जाती है, उसकी एवरेज हमारी 90 हो जाती है. अब वो प्राइस 90 से ऊपर जा रहे हैं हम गेन में, लेकिन एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर तो आप वहाँ पर ही स्टे करते हो. तो देयर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स जो आपके म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेशन के थ्रू होती है, रादर देन आप डायरेक्ट पार्टिसिपेट करें. तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. नहीं, most certainly, and I think one of the most important points you raised was that we are not leveraged, right? Exactly. And ऊपर से when you're an independent investor, because आप constant communication में होते हो with other new investors and also with brokers, right? It's very easy to be convinced to take the wrong decision. At our offices, हमें आपस में conviction के साथ argue करना पड़ता है to introduce a script to our fund, right? उसका हर एंगल हमें आर्ग्यू करना होता है, उसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग एक दूसरे से हम सब करते हैं. देन वी कम टू अ डिसीजन आफ्टर एवरीवन इज काइंड ऑफ इन एग्रीमेंट्स विद दैट. तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट भी इज एट अ वेरी सीरियस लेवल व्हेन यू हैव फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स इन्वॉल्वड. एग्जैक्टली, फिडुशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एजुकेटेड डिसीजन होना चाहिए. आपने सारे जितने आप पैरामीटर्स कवर कर सकते हो आप कवर करते हो और उसके ऊपर एक जो है वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हो आप, ताकि जो है वो
इन द इंटरेस्ट ऑफ द यूनिट होल्डर्स हो, इन्वेस्टर्स हो, Definitely. ताकि जो है वो बेस्ट से बेस्ट रिटर्न्स हम बनाकर दे सकें. Most certainly, most certainly. Well, Yaqub Saab, thank you so much for joining us on the show today. Thank you, It's thank you such a so much. pleasure every time you have come. You've shared such great advice. And if you guys missed the starting of this, please go check it out on YouTube. Yaqub sir ने बहुत अहम चीज़ें, especially for new investors, share की हैं. I will see you guys on Friday. Till then, take care. Khuda Hafiz.